It's fine. Online students, good morning. Any doubt from yesterday's lecture? बोलिए जी. Hello. ठीक है. Ma'am, the market intervention schemes, they are basically post harvest. Yeah. So, in which ਆਪਾਂ subsidy include कितना करा? Like for example, subsidy. For example, चाहे direct subsidy. Indirect subsidy mostly है जरा pre-harvest चीज़ां थे, जड़े input factor. Yeah. Price subsidy. Exactly. ते जड़ियां ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ only when the 10% fall or 10% demand or supply is going to change on the request of the state government. Okay, there are very few instances when such a mechanism is triggered. Okay, so there is an option that is available, but कितने frequently use करना है, that depends upon the situation. Because ultimately वही चीज आ जाएगी कि market distortion बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, India is kind of an economy जो ऊपर थोड़ा flexible rate पे चल रहे हैं. अपने government doesn't interfere into it कि अपना market distort करिए. Because demand supply everything will go on at its own pace. Fine. So only in certain circumstances it happens. Chalo, shall we move forward now? Yes. So the next topic that we are going to consider is the public distribution system, that is the PDS. आज सारे बुढ़े बुढ़े क्यों एनर्जी क्यों नहीं दी? Saturday? ठीक है, good. What is public distribution system then? Yesterday we did MSP, fair price shops and issue price and everything. So connect that thing and tell me what is PDS. Okay. Then it stores it, and then through fair price shops it provides it to the the people who are below poverty line or who are. Okay, so basically public distribution system is kind of a well established network or system of these. I will make you write this. It is a network of well established fair price shops, fine, through which the needy or the eligible people, जैसे for example कल हमने किया था अंत्योदय योजना people, fine, or those who are covered under the National Food Security Act, NFSA. Okay, they are provided with the food grains at the subsidized rate. That is the public distribution system. And for that thing, आपने सुना होगा पीले कार्ड टाइप, नीले कार्ड, पीले कार्ड, whatever. Okay, that is kind of a card that is given to the people who are eligible for it. They can just show it and they can claim that we need this food and all. Fine. Now, one of the thing is that if we talk about the positives of the system, if we see from the lens of a positive think or optimistic lens, if we use, we say that this system is something that is the largest social welfare scheme or a policy that is being carried out by any government in the world. Fine, because feeding such a large proportion of population, still we have a much amount of population that is below poverty line. Yeah, you can consider approximately 30% of the population of India. 25 to 30% population of India is still below poverty line. All right. So the thing is that feeding such large proportion through a government network is in itself a very much high responsibility, as well as a system that is being acknowledged all over the world. One thing is that. Second thing is the PDS जो है, it basically is one thing is it has to ensure the food security to everybody. Yes. And it has to fulfill those 3 A's: affordability, accessibility and availability. Fine. So the objective measure of this system is this thing. Another thing is that through the PDS there is proper procurement channel that is available. yes. And because this proper procurement channel is available, the small farm, whether you are a small farmer or you are a large farmer, you have this assurance that whatever you are producing, it will be taken by the government.
ठीक है, so you are not left at the mercy of the market. Fine, product produce बिक जाएगा because whatever will be there, government will take it at the MSP or whatever. Fine. So one of the systems is it is basically promoting what we use a term here which is called as distributive justice. Distributive justice, that is basically kind of social justice plus economic justice. Social justice is whether you are poor or you are rich, you are having the access to the food, fine, and the quality is not compromised as per the whatever the tribe goes. And the other thing is the economic justice. Why? Because you can afford it, it is given at a very nominal rate. Fine. So distributive justice, this is the means. How it works that I have told you yesterday also. FCI, then there are fair price shops, and then they are taken up from there, and you have the cards and everything that is free. But presently, जो हमारे पास main चीज इससे देखने को मिल रही है, that is the certain issues, negativities that are associated with this system. That is why it is incorporated into your syllabus. Fine. पिछले 4 to 5 years में UPSC में जितनी बारी question PDS से related आया है, that has come on the account that what are the negatives or what are the issues that are related with the system. Fine. Now, if we classify the issues of the PDS, we put it under 2 headings. One is under in the identification of the beneficiaries, means who are the people who actually are in the dire need of it. Fine. That is the identification of beneficiaries. And the second issue is pertaining to the operation of the system, or you can simply say the supply chain, or how this the working of the system, how it works. These are the 2 areas where the issues with the PDS are arising. Fine. The first, identification of beneficiaries, what is it is, in common adherence also we see there are many people जिनके जो बहुत ही ज्यादा false cards बना के रखते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ghost beneficiaries. 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है ghost beneficiaries, उसमें होगा क्या, एक तो कार्ड बन जाएगा किसी बंदे के नाम से, बट वो एक्चुअली में ना तो he is under the BPL family, neither he is eligible, but he is having that card. ठीक है. या फिर क्या होता है, जिस बंदे के नाम पे कार्ड बना है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, उसके नाम पे कार्ड बना लिया, लेकिन अगर आप उसको चेक करने जाओ बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ उस कार्ड की बेसिस पे राशन जो है वो एलोकेट हो जाता है. फाइन. और जो ये शॉप के ओनर्स होते हैं या जो ये लोग होते हैं, they themselves are involved in such kind of an excess. फाइन. बिकॉज दे उस कार्ड के ऊपर वो प्रोक्योर कर लेंगे, ले लेंगे और उसको फिर मार्केट रेट पे बेच देंगे जाके. तो काइंड ऑफ दे आर गेटिंग इट. फाइन. So one is ghost beneficiaries, other is the exclusion and the inclusion errors. Who people are to be included and who are to be excluded. Because if you see in India, suppose this is the poverty line. Yes. There is frequent fluctuation of people between this below poverty line and above poverty line. There are people who keep on fluctuating between this. Why? Suppose there is a daily wage laborer. Fine. He is basically a BPL, but might be कुछ season का time आ गया, ठीक है, sowing या harvesting season आ गया, he got more of his income, ठीक है, थोड़ा उसकी situation better होगी, कुछ हो गया थोड़े time वास्ते, तो he will fluctuate to that thing. Now if he goes to above poverty line चला गया, now he can no longer claim the benefits of being a PPL. Fine. But again, it was only a kind of a seasonal or a temporary phenomena. Okay, after a time, then again he will be below the poverty line. Okay. Somebody is waiting. Okay. चलो. So this is the thing. So इनको बोलते हैं inclusion and exclusion errors. यहाँ पे भी आ सकते हैं या फिर identification के टाइम पे भी it can come. Fine. So first तो आपने जिन लोगों को चाहिए प्रोविजन जिनके लिए बनाया गया उन तक नहीं पहुंच रहा और गलत फायदा उठाया जा रहा है, those people who are claiming it for their own purpose. ठीक है.
Second is in the, yes, ghost beneficiaries was Do you think there is another term for this? another term. नहीं, there are मतलब two meanings of which by which ghost beneficiaries can exist. One is you are taking the name of a person in the card whose name there is the card, but actually that person doesn't exist. Okay, and the other thing is that person is not the BGL person, but you are making the card of that person, so that is called as the ghost beneficiary. Fine. Then exclusion and exclusion errors we can call here. We can call false positives. मतलब गलत बंदों को तुमने इंट्रोड्यूस करवा लिया, false positives, right? So these are certain keywords that are used here. Second, we come to the operation of the supply chain or the working of it. As some of the factors that we discussed yesterday also come under this is the procurement, because they are to be stored in the godowns. So storage problems always exist. जो कल वाले वही वाले थे. But यहाँ पे जब हम PDS की बात करते हैं, storage में एक और चीज देखने को मिलती है, that is called as the leakages. Fine. कितना अनाज जो है आपने गोडाउन में फुलफिल करवाया, and उसी के थ्रू जो है unauthorized leakages are also being reported. ठीक है, so that is one of the other issues. And just consider this fact that this cannot happen without the nexus between 2 to 3 bodies. Fine. तो हमेशा इसमें बड़े-बड़े ग्रुप से इन्वॉल्व होते हैं सारे. So that is why leakages is one of the problems in the storage system. एक तो वहीं पे लॉस हो गया सरकार को भी और वैसे भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लीकेज होगी. Then ट्रांसपोर्टेशन में अगेन लीकेजेस होती है. Fine. ट्रांसपोर्टेशन में अगेन देयर आर लीकेजेस दैट आर इन्वॉल्व. उसके बाद क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप की वर्किंग. फेयर प्राइस शॉप्स पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ कर देना, कम अमाउंट में देना या प्रॉपर मेजर करके ना देना चीज को. ठीक है, ये रजिस्टर्स प्रॉपर मेंटेन ना करना. फाइन. So these are certain issues that are associated with the PDS system. हाँ जी, is it clear online people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या फिर दे सेड समझा करते हैं, जब पता है सबको, सरकार को सब पता होता है क्या चल रहा है. ठीक है, इट इज ओनली दैट ऑन द फेस ऑफ इट वो क्या कह रहे हैं, और खुद के सिस्टम में कोई चीजों को तुम्हारी उसके बिना थोड़ी हो सकती है. फाइन. देन सरकार केम आउट विद समथिंग व्हिच दे टर्म्ड एज TPDS, दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ नाम ही बदला. ठीक है, और टारगेटेड PDS सिस्टम वाज अगेन दैट target for specific groups. Which groups? Again, that eventually fall in this category. ठीक है, through the schemes. Like अगर आपने अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की है, ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो आ रहे हैं लोग आ रहे हैं जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब BPL में भी बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है जो, ठीक है, वो आ रहे हैं, तो उनको आपने एक स्कीम के तहत रिकॉग्नाइज कर दिया. पहले तो रिकॉग्निशन स्कीम के अंडर कर लिया, फिर उस स्कीम को इसके अंडर ले गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, PDS के थ्रू ले रहे हैं. तो टारगेट हो गया वो ग्रुप एक तरह से एकदम अलग हो गया. तो उनके पास क्या होगा, अंत्योदय अन्न वाला कार्ड होगा, उनको 35 kg राशन जो हमने कल पढ़ा था उसके हिसाब से मिलेगा. ठीक है, तो एक तरह से क्या होगी, टारगेटिंग हो गई उन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. दैट इज जस्ट द थिंग कि हमने उनको टारगेट करना. सो दीस आर द इश्यूज दैट आर एसोसिएटेड. फिर टारगेट वाला है, बट अभी भी वही हाल है, कुछ इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है. तभी कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी है, ठीक है, उनकी आप थोड़ी रिकमेंडेशंस मानो. ठीक है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर को लेके, इन सब चीजों को लेके. और एक और चीज हमें देखने को मिलती है PDS में कि ना अनाज जो है वो कई बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और गोडाउन्स में पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है. ठीक है, वो खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप हिसाब नहीं लगा रहे कि आपको कितना जो है लेना है अपने गोडाउन्स में फिल करना और कितना आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, so that is again a mismatch that is happening in this. Clear? So अब you suggest me what can be done or what should be done so that this entire system can work properly. पहले identification पे आ जाओ. How can the issues that are related to the identification of beneficiaries can be solved? ठीक है, सेंसस कैरी आउट करो और उसमें इकोनॉमिकली देन यू कैन फाइंड आउट. ओके, एनीवन एल्स?
एक बहुत ही पेक्यूलियर सी चीज है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन चुकी है आजकल। आधार कार्ड। आधार कार्ड, ठीक है, आधार लिंक्ड अकाउंट्स भी बन गए हैं, आधार लिंक्ड आइडेंटिफिकेशन हो गई है। एक और चीज इसी से डिराइव होती है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वो आप चीज यूज कर सकते हो बेनिफिशियरीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। वन ऑफ द थिंग अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, लिमिटेशन ऑफ कैश पेमेंट्स। ओके, डीबीटी के थ्रू करवा दे, है ना। ओके ओके, दैट मींस कि इंस्टेड ऑफ कर लिए एडमिट, ओके। सो व्हाट कैन बी देयर कि आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू या फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू वो करो, ठीक, चलो। बट उसमें ना एक चीज आ जाती है कि जिन लोगों को राशन चाहिए उनको राशन ही चाहिए। अगर आप उनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करते हो तो क्या पता आप उस चीज के लिए यूज भी हो रहे हैं नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। एक मैम, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। we are doing this topic of public distribution system। तो अभी जस्ट ये इसकी इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं, अब इसकी हम रेमेडीज देख रहे हैं। इसको मैं अभी 10 मिनट्स में, अनदर 5 to 7 मिनट्स आई विल मेक यू राइट द पॉइंट्स, तो उसमें आपको इश्यूज दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। ओके मैम, ओके। चलिए, तो एक तो ये हो गया बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और enhancing the supply chain हाउ through the cold chain for perishable things. जैसे आजकल बहुत ओके, ये ज़्यादा ओवर स्टोरेज आ गया कि स्टोरेज फैसिलिटीज रैंप अप करो, कोल्ड स्टोरेज लेके आओ, या प्रॉपर जैसे कल बात की थी मॉडल से स्टोर करो, ठीक है, इट्स ओके। और लीकेज कैसे प्रिवेंट करनी है ना, ये बताओ। मेन तो लीकेज और इंक्लूजन, यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप होगा। एक आपको आजकल बड़ा चल रहा है न्यूज़ में, जब से जीएसटी आया ई वे बिल सिस्टम भी हो गया, तो उसमें जीएसटी वाली चीज जो ट्रांसपोर्ट होती है चीजें, उनको एक तरह से रेगुलेट कर लिए ई वे बिल्स के थ्रू। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई मान लो किसी भी तरह की टैग्स यूज करते हैं, जो ट्रक्स या जो ये सारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अगर उनको किसी रडार के थ्रू, किसी सिस्टम के थ्रू, जीपीएस के थ्रू हम उनको ट्रैक करेंगे कहाँ जा रहा है, ठीक है, इतना सामान ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग पे उसको प्रॉपर्ली देखा जाए तो लीकेज प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। तो ऑल दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अ सिंगल आंसर if you want to entire this problem or the issue that is arising is the aid of technology, ठीक है। Yes, that can be used and you basically have to track the entire thing कि कहाँ से जा रहा है, कितना जा रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। फाइन, जब आप गोडाउन में सेव कर रहे हो चीजें तो उसका भी आप एक डाटा मेंटेन करो, वहां से वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन से गोडाउन में कितना सेव है, कितने बेनिफिशियरीज आए हैं, किसको एलोकेट हो गया, एवरीथिंग दिस इज टर्म्ड एज एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज नॉट पॉसिबल टू एन एक्सटेंट बिकॉज वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। फाइन, तो इससे यहाँ से तो चीजें जो है वो बेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अभी क्या चल रहा है, फिजिकल चल रहा है। फिर आप जो ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंट चेकिंग करवाओ, जो आपके इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं उनको उनकी प्रॉपर चेकिंग, उनको बोलो कि यहाँ पे विजिट करें, इनको बोलो कि अपना टाइमली हमें पूरा जो एनालिसिस, जैसे बैलेंस शीट बनती है उस तरह से हमें प्रॉपर एनालिसिस बना के दो। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाओ फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यहाँ जो प्रोक्योरमेंट के जो आते हैं, यहाँ पे क्या ऐसा तरीके से अभी पीछे न्यूज़ के साथ सामने की जो एटीएम मशीन लगाई है प्रॉपर है ना कि क्या वो बेनिफिट नहीं, अगर पूरे नेशनल लेवल पे उनको ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसे देखो कोई भी चीज होती है ना, उसको हमारी कंट्री में हमेशा पायलट लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो अगर वो पायलट लेवल पे कामयाब हो रही है फिर हम सोच सकते हैं। पहले तो आप उसको किसी एरिया में लगाओ, फिर आप किसी स्टेट का मॉडल फॉलो करो, फिर पैन इंडिया लगाओ, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। लोगों में डाइवर्सिटी एक चीज है, इकोनॉमिकली भी स्टेट्स बहुत डाइवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी स्टेट्स बहुत डाइवर्स हैं। आप चंडीगढ़, इधर हिमाचल, हरियाणा, यहीं से होगे मोस्ट ऑफ यू पीपल, ठीक है। अगर आप
छत्तीसगढ़ एमपी वाली साइड चल जाओ, झारखंड वाली साइड चल जाओ, उड़ीसा तो बेटर हो गया है. नवीन पटनायक जी इज द बेस्ट सीएम दैट इज बीइंग सीन इन द टाइम्स. फाइन. तो वहां पे जो है इतनी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है. तो पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस, आप वर्ड लिख देना वहां पे कि पायलट बेसिस पे इट कैन बी डन. जैसे अभी ये साइकिल्स वाला जो चंडीगढ़ में ऐड हुआ है, तो ये सब पायलट बेसिस पे किया जाएगा. ठीक है जी. एनी डाउट इन दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? लिखे फिर. No, ma'am. Yes, ma'am. की होया, कोई डाउट है? No, ma'am. Three A's are suitability, accessibility and availability. पहले चीज अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट के थ्रू. ठीक है. या जो रूरल एरियाज में ये ना उनको ट्रैवल बहुत करना पड़े या कुछ. ठीक है. तो तीसरी चीज क्या है, असेसिबल होनी चाहिए. असेसिबल भी वही कि दूर जाके ना लेना पड़े, हो सकता है उनके घर पे आ जाए, किसी तरह आ जाए. असेसिबल हो और चीज क्या अफोर्डेबल हो. ठीक है. दैट इज दिस थिंग. चलिए राइट डाउन नाउ. The public heading दे दो PDS. The public distribution system PDS aims to provide subsidized food to poor through a network of ration shops. To poor through a network of ration shops or the fair price shops. Through a network of ration shops or fair price shops. Food grains such as rice and wheat. Food grains such as rice and wheat are procured from farmers. Allocated to states and delivered to the ration shops where the beneficiary buys his entitlement. Next point. The NFSA, National Food Security Act, the NFSA 2013 relies on existing TPDS, to deliver food grains as legal entitlements to poor households. Put up the subheading issues with PDS. Number 1, identification of beneficiaries. हाइफन लगा के इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए. TPDS is prone to inclusion and exclusion errors. Resulting in entitled beneficiaries not getting food grains,
while those ineligible are getting undue benefits, while those ineligible are getting undue benefits. शॉर्ट फॉर्म को लेके एक चीज बतानी है मुझे, जब आप आंसर लिख रहे हो कोई भी यूपीएससी में, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, लेकिन मान लो यहाँ पे हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले एक बार लिख दिया खोल के उस टर्म को, उसके ब्रैकेट में आपने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। जब आपने एक बार ऐसा कर दिया टॉप में, तो फिर आप फ्रीक्वेंटली फिर नीचे शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आप अभी नोट्स बनाने में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो वो नहीं यूज करना, ठीक है। कुछ चीजों की जो वर्ड्स हैं वो आपने जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लिखना है जब जगह लिखोगे, ठीक है, तो एच कैपिटल होगा यहाँ पे। गवर्नमेंट क्यों लिखोगे तो सपोज आप थोड़ा कोशिश करना कि जी कैपिटल हो, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। बाकी कल मेरी क्लास को ऑफ होगा, इसलिए आई विल गिव यू आंसर्स फॉर राइटिंग एंड आई विल सी टू इट, रादर आई विल फोर्सफुली सी टू इट कि आज 15 मिनट एंड की आपको मैं वो आंसर राइटिंग का जो बताना है वो बताऊं, ताकि आप उसको अप्लाई करके वो आंसर्स लिख के ला सके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट। पूरा लिखना होगा या ना 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 पूरा लिखना है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जी कैपिटल लिखना है, ऑनरेबल भी, हाँ ये पूरा ही लिखना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हैव टू मेक इट कैप्स, शॉर्ट फॉर्म यूज ही नहीं करनी, ठीक है। पूरा वाज वर एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर, टेंस भी थोड़े आपके सही हो जाएंगे, अभी तो लिख रहे हैं हम, वो सब चीजों का यूपीएससी में ध्यान रखना। स्टेट में भी थोड़ा लिबरल हो जाती है, यूपीएससी पीपल आर क्वाइट एम्पैथेटिक अबाउट योर लैंग्वेज स्किल्स, फाइन। चलिए सेकंड लिखो, घोस्ट कार्ड्स, घोस्ट कार्ड्स मेड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट पीपल, host cards made for non-existence people. Third point, leakages. Though the offtake of grains has increased, इसमें लिखो leakages वाले point में, though the offtake of the grains, OFF off, though the offtake of the grains has increased, कॉमा CACP डेटा, CACP क्या है? कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कल बात की थी, ठीक है। बट CACP डेटा शोज दैट कंजम्पशन इज at 60% of offtake, consumption is at 60% of the offtake, and rest 40% is leaked into the open market. Consumption is at the 60% of the offtake, and the rest 40% is leaked into the open market. ये आप अंडरलाइन करके डेटा लिख के आएंगे आंसर में वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, inefficiencies in the supply chain, inefficiencies in the supply chain including procurement, storage, and delivery mechanisms. Next point, imbalance in the storage capacity, imbalance in the storage capacity across states, imbalance in the storage capacity across the states, इसमें लिखिए, it compromises the quality of food grains, it compromises the quality of the food grains, and in 2010
Supreme Court made observation regarding rotten grains due to inadequate storage facilities. Clear? Now put up the subheading alternatives to TPDS. क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं और improvements और alternatives? 40% में ये rotten grains की include है। नो, ऑफटेक की बात हो रही है। रॉटन को ऑफटेक कैसे दोगे? ऑफटेक इज जब आप गोडाउन से फेयर प्राइस को दे रहे हो तो वो देख के लेंगे ना, रॉटन थोड़ी लेंगे। Alternatives to TPDS, write down first. Direct benefit transfer. इसमें लिखिए direct benefit transfer. Cash reduces administrative cost. Cash, alternatives में पहला point है direct benefit transfer और उसमें लिखो cash reduces administrative cost, comma, expands choice. You have the choice now. You have got the money, you can buy it from anywhere. Fine. अगर आपको नहीं, आपके घर में राइस नहीं खाना है आपको, तो आपको जबरदस्ती राइस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? So expands choice and encourages competitive pricing. Among grocery stores. Competitive prices among grocery stores, because everybody would be buying from the open market, there would be increase in the demand, so every salesperson who will be present there or the shops that will be present, they would want that our the grains should be sold from our, तो कम हो जाएंगे prices. Next लिखो. Yeah, Quality, the race for quality. yes, there is this can be a, you can say a long term effect of it. But then there is always a cost associated with the quality. अगर भी जैसे हम राइस की बात करते हैं, बासमती राइस है, एक आपके दूसरे सिंपल राइस होते हैं, परमल वैरायटीज को बोलते हैं, फिर इंडिया गेट वाले आ जाते हैं, ठीक है? So with the quality the price is also change. Next लिख सकते हैं आप food coupons, yeah. Reduce corruption. Food coupons के आगे हाइफन डाल के लिखो, it will reduce corruption and beneficiaries can avoid poor quality grains. वही है यहाँ पे, क्योंकि आप जब आपके पास कूपन है तो आप कहीं से भी अवेल कर सकते हो उस चीज को, तो कहीं से भी अवेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं कहीं और से लेना चाहता हूँ, वही चॉइस वाला पॉइंट आ गया, ठीक है? थर्ड लिखो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, और इसको अंडरलाइन करना, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन of the TPDS operations, comma, digitization of ration cards, ये भी हो सकता है, digitization of ration cards, comma, setting up of transparency portals, पोर्टल बना सकते हो एक, जिसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि आज इतना ऑफटेक हुआ है. सेटिंग अप ऑफ ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो कि है ही नहीं अभी तक, सबसे ज्यादा जरूरी. जब गवर्नेंस पढ़ते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जब गवर्नेंस पढ़ते हैं
उसमें हर जगह ये पॉइंट आ जाता है कि आपको जब तक आप ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं कहीं पे इनकॉर्पोरेट करोगे तब तक वहां पे प्रॉपर जो है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है जो भी आप बात करते हो वो चीज नहीं आएगी। क्लियर हो गया? So these were the issues that are associated with this and all. But again, you know, if you are writing the answer, you will see कि what is being asked in the question. ठीक है, हमेशा बुरा बुरा ही नहीं बोलना है, बट मैंने आपको, क्योंकि वो तो हम लिख ही सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पीडीएस के फूड सिक्योरिटी वाला जो बताया आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाला पॉइंट जो बताया है, फाइन, एंड 3A's वाला पॉइंट चाहे साइड में लिख लो कि अगर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए तो ये चीजें मेंशन कर देना कि फूड पीडीएस की वजह से हम 3A's ऑफ फूड को इंश्योर कर पा रहे हैं एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दैट कैन बी इंश्योर। क्लियर? चलो अब बिकॉज मैंने आपको इसमें वो लिखवा दिया है अपना कंटेंट, तो इसी से एक क्वेश्चन बना के देती हूँ, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आइएगा। ये तो इसमें कंटेंट इंक्लूड हो जाएगा, बट इट वुड डिपेंड कि हाउ यू राइट द आंसर। फाइन, आप उसको फ्रेम कैसे करेंगे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। identify the issues affecting the proper functioning of TPDS. Identify the issues hampering the functioning of TPDS. Full stop. Also suggest measures to revamp it. 10 marks. How many words? 150. Try to include the flow charts also or some illustration if possible. Clear? Okay. Now we will come on to the next topic, that is subsidies. कल बात कर रहे थे सब्सिडीज की, ठीक है। सब्सिडीज का टॉपिक भी आपका सिलेबस में इसी तरह मेंशन्ड है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आया हुआ है कि व्हाट आर द इश्यूज विद द सब्सिडी, सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और मैंने कल भी आपको बोला था कि हम एक वेलफेयर स्टेट है ना, हमारी पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया 25 to 30% अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम डेवलपिंग नेशन है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। सो हाउ कैन यू से, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी आर एन अग्रेरियन इकोनॉमी, फाइन, आर प्राइमरी सेक्टर। और एक चीज आपने विजुअलाइज की होगी ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दोनों की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। इट वाज ओनली द प्राइमरी सेक्टर which grew at a positive rate. So at the end we can say that the economy kept churning at whatever pace during the pandemic times only because of the fact that there was this agriculture sector going on, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी लॉकडाउन के मेजर से एक तरह से अफेक्ट नहीं हुई, रूरल एरियाज में जो काम वगैरह सब चल रहा है, ठीक है। और अगर आपने देखा हो उस टाइम पे जब कोविड का सबसे पहले वाला लॉकडाउन आया था, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उस टाइम पे जब अप्रैल में हार्वेस्टिंग होनी थी तब मेजर्स अनाउंस किए गए थे कि फार्मर कैसे करेंगे, उस चीज को नहीं रोका गया, ठीक है। तो अग्रेरियन इकोनॉमी है तो सब्सिडी हमारी मेजरली जो जाती है वो अग्रेरियन की तरफ ही जाती है। बाकी तो हम इंसेंटिव देते हैं, बाकी सेक्टर्स में सब्सिडी थोड़ी देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, फाइन। चलिए now when we say subsidies, what is basically a subsidy? What do you mean by subsidy? Financial assistance, okay. Cash as well as kind, okay. Can you give me an example of a kind subsidy? Anybody else? Lowering the subsidized rates
Price subsidy means अगर कोई चीज if the rate of a particular thing is rupees 100 per kg, you are providing it for rupees 50 per kg. This is called as price subsidy. So this can be one of the things. है ये किसी चीज के ऊपर, commodity के ऊपर, but you are providing that at a subsidized rate. Fine. So now we basically classify subsidies into two categories. That is the direct subsidy. But it would not be kind of be like in terms of quantity of goods और what और क्या हो सकता है like अगर आपको ये is it direct providing or no, actually it is not being done. Any good or something because it is something which will go into the welfare program. क्या free में बांट रहे हैं. Subsidized. Subsidy means that you are cutting down the cost. You are providing something at a lower rate than what is present at the market rate. Subsidized. ठीक है. सब जैसे एक word होता है subside. Subside means दबाना ना किसी चीज को तो वहां से ऑफशूट निकल के आया है सब्सिडी. ठीक है. तो सब्सिडी इज बेसिकली आप फाइनेंशियली उस चीज को लोअर डाउन कर रहे हो ताकि वो विद इन द लिमिट्स और रीच ऑफ पीपल आ जाए. फाइन. नाउ वी से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज. यहाँ पे आपका कैश और काइन वाला थोड़ा सा चीज यूज हो जाती है. जो डायरेक्ट सब्सिडी होती है दैट इज पर्टिकुलरली हम कहते हैं कैश. ठीक है. जिसमें हम डीबीटी की तरफ जाते हैं. कैश इंसेंटिव्स यू आर प्रोवाइडिंग. फाइन. इन व्हाट वेज इट कैन बी. प्रधानमंत्री किसान योजना है, पीएम किसान, जिसके तहत हम क्या बोलते हैं 6,000 रुपए देने हैं पर ईयर देने हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ रुपीज 2,000 ईच. ये आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में डाल रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट सब्सिडी. ठीक है. जो आती है इनडायरेक्ट सब्सिडी. इनडायरेक्ट में बेसिकली वी हैव द प्राइस सब्सिडी and majority it is on the inputs so that the working capital is available or you can say working capital is lowered. Yesterday I told you what is working capital. किसी भी चीज को रन करने के लिए जो कैपिटल अमाउंट चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जांपल अगर आपने सोइंग सीजन आ गया, आपको फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग इज नीडेड, इनपुट कॉस्ट, तो उस पे यू कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज द प्राइस सब्सिडी. नाउ हियर वी कैन से द मोस्ट फेमस यूरिया वाली सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे जो आपको बोलते हैं इतनी बिजली फ्री मिलेगी, इतने यूनिट फ्री मिलेंगे. ठीक है. कैपिंग तो कर दी है, प्राइस कम कर दिया आपके लिए, या फिर क्या होता है पर यूनिट का प्राइस कम कर देते हैं या कुछ यूनिट्स फ्री दे देते हैं. इट कैन बी बोथ वेज. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी पे हो गया, वाटर यूजेज पे हो गया, फर्टिलाइजर्स पे तो हो गया, यूरिया या जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए. दिस कैन बी द प्राइस सब्सिडी. किसान क्रेडिट कार्ड. या किसान क्रेडिट कार्ड, बट दैट पर्टिकुलरली कम्स अंडर द credit, agricultural credit. It is not subsidy. Kind of a loan. Yes. But But it is a kind of a loan. You have to pay it in some one way. Doing subsidized rate पे होता है. Subsidized rate पे होता है, but it is a credit. It is a loan because you have an obligation to pay it. Here you don't have it. They pay 7% interest and 3% they get back as cash. But it is not a direct subsidy. It is covered under agricultural credit only. Indirect में होता है. तो indirect means of farmer indirect is welfare आ जाएगा. ठीक है. बट हम किसान क्रेडिट कार्ड को एक तरह से सब्सिडी में वर्क नहीं करते. केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप देखें है इनडायरेक्ट है वो, दैट इज ओके. ठीक है. बट इफ यू से कि जब हम सब्सिडीज वाला टॉपिक कर रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है जो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको कार्ड दे रहे हैं उसमें उसको आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो दैट इज अप टू यू. हाँ वो तो फ्री टू यूज है, बट जो इंटरेस्ट को पे करते हैं उसका उनको कैशबैक मिलता है. हाँ. तो आप क्या बोल रहे हो कि वो यहाँ पे कवर करें उसको? that is credited as subsidy. Yes. सब्सिडी ही कहते हैं. प्लस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है जैसे जो हम वो सारा जो टॉपिक है ना वो हम कभी यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट में पढ़ते हैं. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वहाँ पे हम इवन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अलावा हम जो लगाते हैं सोलर सेल्स
solar cells. Priority sector lending, I know there are 8 to 12 sectors that are governed under priority sector lending. Majority is for the agriculture, है ना? Yes. तो you are absolutely right when you say कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें बैक आता है, सब कुछ आता है, वो इनडायरेक्ट में है, लेकिन हम उसको सब्सिडीज में नहीं काउंट करते किसान क्रेडिट कार्ड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिडीज अवेलेबल होती है ये सरकार एक वेलफेयर के तौर पे ले रही है। वहां पे क्या हो रहा है, जब आप लोन दे रहे हो आप कुछ तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो in one way the farmer has an obligation to pay it back, fine, maybe at a lesser rate, and same goes for the priority sector lending also। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट उनके पास जाओ कि मुझे एग्रीकल्चर लोन चाहिए तो वो आपको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायोरिटी में आता है। ठीक है, यहाँ पे उसको कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है कि पे करना है या कुछ करना है, उसको फायदा ही फायदा है, लेकिन वहां पे वो चाहे बैक भी आ रहा है उसको पे तो करना पड़ रहा है एक बार। ठीक है, तो दैट इज व्हाई हम उसको सब्सिडी में नहीं कवर करेंगे। Subsidy is always considered one direction. One directional payment. Yes, and the one thing is it is always from the perspective of the welfare, fine। लोन जहाँ पे वर्ड आ गया, चाहे इंटरेस्ट का पेंशन है, that is something which is like you are having to economically penetrate through। ठीक है, so that is one thing। Now the question that arises is that which kind of subsidy is better, whether direct subsidies are fine or indirect subsidies are fine। Indirect are fine, जो उसको जो लग रहा है सही वो अपना आंसर सपोर्ट करे विद सम क्लेम। आप कह रहे हो डायरेक्ट इज फाइन, कैसे? उनकी जो भी उनको कैश में है उनकी डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिलता है, चाहे वो इसको कैसे यूज करें, चाहे इन्वेस्ट करें या जैसे कि ठीक है, उनको डायरेक्ट उनके पास जा रहा है, इधर उधर कोई लीकेज नहीं हो रही इस प्रोसेस में। ठीक है, वन ऑफ द पॉजिटिव इज दिस। बट अगर डायरेक्ट भी हो रहे हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा है, आपको क्या पता कि वो उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, यानी डाइवर्जन तो फिर भी पॉसिबल है, मिसयूज तो फिर भी पॉसिबल है। मतलब इनडायरेक्ट में भी तो उस वैसे हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो जो हो तो सकता है, लेकिन कहाँ पे ज्यादा बेटर है? इनडायरेक्ट में कम चांसेस। इनडायरेक्ट में कम चांसेस है। आप कह रहे हो इनडायरेक्ट बेटर है, आप भी कह रहे हो इनडायरेक्ट बेटर है, दोनों बताओ कैसे बेटर है? And indirect is being utilized in the primary business point of वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एनकरेज होंगे कि हम ग्रो करें, सीजन में हम उस साइकिल में ग्रो करें। जो ये होता है कि उनको टेंशन है कि हम लोन लेके अपनी फसल उगा रहे हैं, फिर जो उससे हमें बैक आएगा पैसा वो सारा लोन में ही चला जाएगा, तो एंड में कुछ नहीं बचता, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और आप इनडायरेक्ट में ये ज्यादा चांसेस हैं जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं वो फुलफिल होगा। creates a greater incentive for them to work. Okay, that is good. Creates a greater incentive for them. It actually was introduced so that a greater incentive is available to them. ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज बताइए डायरेक्ट सब्सिडी इज बेटर और इनडायरेक्ट? Indirect. Both are having their own positives and both are having their own negatives. You cannot come on to a conclusion कि यही चीज सही है, हमने दूसरी चीज जो है वो बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, yes, circumstances and most importantly how it works. The main thing lies that how the system works. ठीक है, जो लीकेजेस वाली प्रॉब्लम है, जो करप्शन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मैंने यूरिया सब्सिडी यहाँ पे सबसे पहले क्यों लिखा है, ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी मिलती है इसको सबसे ज्यादा मिसयूज किया जा रहा था, यूरिया को डाइवर्ट किया जा रहा था टुवर्ड्स, यस, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। फिर एक सरकार एक चीज लेके आई व्हिच वाज कॉल्ड एज नीम कोटेड यूरिया। व्हाट इज नीम कोटेड यूरिया? जिसकी डेसोल्यूशन जो है सॉइल में बहुत ही स्लोली एंड कम रेट पे होती है, एज ए रिजल्ट आपको उसकी अमाउंट भी थोड़ी कम चाहिए होगी, एंड बिकॉज यू हैव कोटेड it cannot be diverted further so that the misuse can be prevented by neem coated urea। फिर एक nutrient based subsidy scheme भी आई है, NBSS nutrient based subsidy scheme। कितना, ये भी basically NPK fertilizers हैं हमारे मेन, तो इन्हीं के ऊपर ये जो subsidies हैं ये भी available है। Fine, now one of the things जो यहाँ पे major issue बनता है ना, ये तो चलो चल रहा है, okay fine, going on। One of the major issue that comes here is vis-a-vis something called as market distortion। ये मैंने पहले भी बात की थी market distortion की।
creates a black market chain. Market distortion, how you have one commodity and you have two prices. Fine. Same commodity that is present in the market, it is available at two prices. Fine. One is at the subsidized rate, particularly if you are availing it, and second thing is depending upon the open market operations. All right. So as a result of which, this is something called as market distortion. फिर लोग क्या करते हैं, black marketing start कर देंगे कि black में availability करा दो उस चीज की, और दूसरा क्या होता है, वही सेम चीज जो पहले हमने देखी थी, subsidized rate पे चीज लेनी है और उसको फिर महंगे रेट में इन द ओपन मार्केट यू सेल इट ऑफ एंड जो प्रॉफिट उससे रिकवर होता है यू कैन टेक इट. दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट. ठीक है. नाउ अनदर थिंग वी से इज विदाउट इज द WTO. WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यहाँ पे हमें अक्यूज किया जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको ये चीज कि हम सब्सिडी देते हैं अपने फार्मर को एज अ रिजल्ट इनपुट इनके ऊपर सब्सिडी, ये वाली मेनली इनडायरेक्ट सब्सिडी, कि आप अपने फार्मर को इनडायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो. एज अ रिजल्ट आपका फार्मर बहुत ही कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है, और जब वो कम प्रोड्यूस करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में वो कम रेट पे सामान बेच पाएगा. ठीक है. तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, अपने फार्मर को एनकरेज कर रही है कि वो कम पे ग्रो करे और इंटरनेशनल मार्केट में डिस्टॉर्शन क्रिएट करे. सबसे ज्यादा इस चीज की जो प्रॉब्लम है वो यूएसए को है. ठीक है. बिकॉज यूएसए नॉट, मतलब और भी कंट्रीज हैं डेवलप्ड नेशंस, यूरोपियन कंट्रीज तो और भी है, बट यूएसए से ज्यादा ये मुद्दा वहां पे उठाता है. ठीक है. तो अब कुछ हमारे पास जब हम इसको आगे मतलब पढ़ते हैं कभी, तो वी से कि डिफरेंट बॉक्स की सब्सिडीज होती है वहां पे WTO में. ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडीज. ठीक है ना. तो उसमें होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, मतलब जो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव इट. ठीक है. देन एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर, आप दो लेकिन फेज वाइज उनको क्या करना है, खत्म कर दो धीरे धीरे. ठीक है. और फिर एक होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, दैट मींस यू हैव टू ब्रिंग एन एंड टू देम. ठीक है. क्योंकि वो प्राइस डिस्टॉर्ट कर रही है. क्लियर. सो इनडायरेक्ट सब्सिडीज का जो एक मेजर डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, और जब मार्केट डिस्टॉर्ट होती है तो इस तरह की जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग और ये सारी चीजें जो हैं ये सामने आती है. ठीक है. और मिस यूज तो फिर है ही है. फाइन. क्लियर. थोड़ा सा लिखे इसके बारे में. ब्लू बॉक्स जो मेनली था ये क्यों कहते बंद करो इन्होंने, सब तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ते पानी वाले ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं. ठीक है. वो कहते एक तो नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है. ऊपर तो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ देते हो फिर ही जमा ही नहीं कदर करनगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ मिल रहा है. ठीक है. तो इस तरह की सब्सिडीज भी बेसिकली इनपुट आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. क्लियर. चलो write down farm subsidies. The rationale for subsidizing agriculture is, the rationale for subsidizing agriculture is to promote risk taking in farmers, to promote risk taking in farmers, comma, keeping them at par with the non-farm commodities, keeping them at par with, equal to, at par with non-farm commodities, non-farm commodities मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है और प्रोडक्ट्स हैं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में बनते रहते हैं. ठीक है. तो हम चाहते हैं हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि बैकबोन तो एग्रीकल्चर ही है. अब जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ऑफशूट निकलेगा, उससे फिर आप इंडस्ट्रीज लगाओगे, पूरा मैकेनिज्म, उसी से फिर आपका सर्विस सेक्टर भी बूस्ट करेगा. कैसे? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस प्रोवाइड करोगे, सर्विसेज लाइक इन द सेंस एक्सटेंशन सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो एग्रीकल्चर से ऑफशूट होता है, सपोर्ट तो रहती ही है, प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी. ठीक है. एंड encouraging the use of new technologies,
encouraging the use of new technologies. Encourage use of new technology कैसे होगा आपको सब्सिडी? वही जो सोलर वाला हम बात कर रहे थे, है ना, कि अगर आप सोलर इंट्रोड्यूस करवाते हो अपने उसमें तो आपको एक सब्सिडाइज रेट देना पड़ेगा। वो तो हम हाउसिंग में भी कर रहे हैं इनिशियली, क्योंकि वी हैव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन सा नंबर गोल है जो कहता है ये चीज? रिन्यूएबल एनर्जी वाला 17 गोल्स आर देयर। कौन सा गोल है जो एक इस चीज पे, एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाला है और एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाला है? देख के आइएगा। अच्छा, एफएओ के हेडक्वार्टर रोम इटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखो। खत्म हो गया वो पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, direct subsidies involve direct cash incentive to the farmer, direct subsidies involve direct cash incentive to the farmer to help them bear their input cost, and make their products more competitive. Second, indirect subsidies are those where the incentives are not given in the form of direct cash. Indirect subsidies are those where the incentives are not given in the form of direct cash, but prices are subsidized. For example, fertilizer subsidy, electricity subsidy, agricultural extension, etc. एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोड्यूस जो है वो आपकी फार्म से मंडी में पहुंचाया जाए, उस तरह की कुछ एक्सटेंशन सर्विसेज भी अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हमने उस दिन बात की थी कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जहां से आप स्टबल बर्निंग को करने के लिए हैप्पी सीडर वगैरह की जो मशीन है वो आप ले सकते हो रेंट के ऊपर, ठीक है। तो उस तरह के कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे अगर आपको कोई मशीनरी जो है कम रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कैन आल्सो बी अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है। नाउ राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडीज। मेनली तो दो ही रहती हैं हमेशा से। वन इज द मार्केट डिस्टॉर्शन, indirect market distortion, second is leakages, then you can say fiscal imbalance, ये डायरेक्ट में भी पॉइंट यूज हो सकता है। फिस्कल इम्बैलेंस सरकार के ऊपर तो वही है ना, वो जी है ये चीज फिस्कल इम्बैलेंस। Then write down indirect farm subsidies benefit big and medium farmers more. Indirect farm subsidies benefit big and medium farmers more than the small and marginal ones. And medium farmers more than small and marginal ones. Next point. It also inhibits improvement in the production process. It also inhibits
ये यहाँ पे कुछ I think there is something that is wrong with the system. It's okay, fine. हाँ जी, क्या लिखा? Improvement in the production process since the manufacturer has no incentive to improve efficiency. Has no incentive to improve efficiency. What does these points basically say? Obviously, अगर आप सब्सिडी कमोडिटी पे दे रहे हो, इन चीजों पे दे रहे हो, कितनी किस चीज के लिए यूज हो रही है? जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको तो वैसे ही इन चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत कम टर्म्स में है, जबकि सबसे ज्यादा इम्पावरिश्ड तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ही हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर तो आउट ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे हैव सोल्ड इन द मार्केट, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उससे भी अपनी इनपुट कॉस्ट इनकर कर सकता है. तो बेसिकली क्या है, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनको इस चीज का फायदा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी स्मॉल एंड द मार्जिनल वंस. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि एक तरह से वही साइकिल चलता आ रहा है, आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इतना पानी फ्री है, आपको फर्टिलाइजर भी वही मिल रहे हैं, आपको सीड्स भी एक तरह से वही मिल रही है, तो आप कहाँ से न्यू एक नई चीज को इम्प्रूव करोगे? आपके पास इम्प्रूवमेंट का कोई इंसेंटिव ऐसा नहीं मिल रहा आपको, बिकॉज दैट साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. सेम चीज जो हम बात कर रहे थे राइस वीट साइकिल, वही चलता रहेगा, वही फर्टिलाइजर, वही एवरीथिंग विल गो ऑन. सो देयर इज नो you can say encouragement for the change or the improvement in the process. Fine. So indirect की basically तो मैंने आपको लिखवा दिया. अब जो डायरेक्ट का है, डायरेक्ट का भी मेन यही रहता है, बिकॉज मोस्टली क्या देखा गया, डायरेक्ट की मेजर्स अभी तक नहीं आए हैं. ठीक है. जो ऑफ लेट मेजर आया है दैट इज थ्रू द पीएम किसान, और इसको अभी मसले 2 साल हुए हैं. ठीक है. इसमें भी लेकिन वही चीज रहती है, पॉजिटिव इसका वही रहेगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास. ठीक है. सेकंड थिंग इज, हो सकता है इससे मार्केट डिस्टॉर्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लीकेजेस वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए. ठीक है. बट जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो ये रहेगा कि वेदर द फार्मर इज यूजिंग इट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग प्रोवाइडेड और नॉट. क्लियर. सो दिस रिमेन्स द इशू. अब आपको जब इस पे क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा एक बैलेंस व्यू में इस चीज को ऑपरेट करना है, कभी भी नेगेट नहीं करना कि इनडायरेक्ट सब्सिडी ना प्रोवाइड करो. ठीक है. जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की भी बात आती है, दिल्ली में अभी पीछे वो बैन हुए थे डीजल व्हीकल्स, है ना? कितने साल पुराने? 10 साल 15 साल. चेकिंग होनी सी 15 पर चल सकते, और 15 तो बाद प्रॉपर स्क्रैप कर देंगे यार डीजल व्हीकल्स. ठीक है. सो द थिंग इज कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है, आप अब्रप्टली किसी चीज को भी नेगेट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते. आप हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं? फेज वाइज कटिंग और फेज वाइज विड्रॉल करना है उस चीज को, या फिर अगर दूसरी टाइप पे जाना है तो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करो. ठीक है. एकदम से अब्रप्ट यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज देयर इज अ वेल मैनेज्ड सिस्टम दैट इज गोइंग ऑन. अब यहाँ पे भी सब्सिडीज में ये है कि अगर आप तो बिल्कुल डायरेक्ट सब्सिडीज देते हो, इनडायरेक्ट बिल्कुल ही बंद कर देते हो, तो क्या पता वो लेगा या नहीं लेगा. जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उसके वो और भी बहुत खर्चे हैं, तो मे बी वो अपनी प्रोडक्शन को रोक दे या उसकी प्रोडक्शन अप टू मार्क ना हो. ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको बेनिफिट भी हो रहा है, बिकॉज ही इज गेटिंग द एक्चुअल अमाउंट. उसके पास चॉइस है, वो जितनी चीज चाहिए उतनी ले सकता है. उसके पास पेस्टिसाइड की भी चॉइस होगी क्योंकि पैसे आ गए हैं, एवरीथिंग विल बी देयर. तो एट प्रेजेंट पीएम किसान के थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी चल रही है, और इन सब के थ्रू जो है इनडायरेक्ट सब्सिडीज आर गोइंग ऑन. फाइन. Online students, fine? Yes, ma'am. You know, put up a small heading. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया. इसी के अंडर इसमें मैं आपको यूरिया वाला पॉइंट लिखवा दूं कि यूरिया के केस में क्या क्या हुआ है और इंडिया की प्रेजेंट यूरिया पॉलिसी क्या है. क्योंकि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा फर्टिलाइजर सब्सिडी का या इनडायरेक्ट सब्सिडी का, उसमें जो मेजर माल फंक्शनिंग अभी तक देखी गई है वो यूरिया के केस में देखी गई है. तो इफ यू डोंट मेंशन द केस ऑफ यूरिया इन योर आंसर, तो योर मार्क्स विल बी काइंड ऑफ लेस. फाइन. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट तो यू कैन सिंपली राइट डाउन. India is the second largest consumer of urea fertilizers after
चाइना। अभी पीछे क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्री में कि राइस जो है सबसे ज्यादा कौन करता है प्रोड्यूस। उसी तरह से आ सकता है कि फर्टिलाइजर की कंजम्पशन सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। ठीक है, आफ्टर चाइना, हाँ, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ यूरिया आफ्टर चाइना। नेक्स्ट, सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, बिकॉज अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। These type of questions can be asked, one odd question can be there. Second in the production of nitrogenous fertilizers and third in phosphatic fertilizers. Second in production of nitrogenous and third in phosphatic fertilizers. Whereas the requirement of potash is met through imports, Next point, it is one of the 8 core industries. Fertilizer industry जो है हमारी, वो one of the 8 core industries है। ये भी हम पढ़ते हैं कितनी core industries हैं, है ना। उसमें आता है कि one of the 8 core industries is your fertilizer industry. Now इसमें सब हेडिंग दो, यूरिया पॉलिसी इन इंडिया, यूरिया पॉलिसी इन इंडिया। It is a part of central sector scheme of Department of Fertilizers, central sector scheme of Department of Fertilizers, and is wholly financed by Government of India through budgetary support. The new urea policy 2015, the new urea policy 2015, extended till 2020. The new urea policy 2015, extended till 2020, has the objective of maximizing indigenous urea production, promoting energy efficiency in urea production, and rationalizing subsidy burden on the government. Rationalizing subsidy burden on the government. ठीक है, क्लियर हो गया यूरिया की क्या पॉलिसी चल रही है फिलहाल। ठीक है, एक अगला पॉइंट लिख लो, नीम कोटेड यूरिया। Neem coated urea also came into the domain. Neem coated urea also came into the domain to prevent the diversion. ठीक है, तो एक तो आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी यूरिया वाली हो गई। एक आती है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम NBSS। इसमें लिखिए, अंडर दिस
Government announces a fixed rate of subsidy. Under this, government announces a fixed rate of subsidy in rupees per kg basis. In rupees per kg basis on each nutrient of subsidized fertilizer. Namely nitrogen, phosphate, potash and sulfur. नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड सल्फर. तो इस पे क्या हो रहा है, आपको पूरे के पूरे फर्टिलाइजर पे नहीं, रादर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उस फर्टिलाइजर को बनाने में, उस पे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, सो दैट क्या होगी, प्रोडक्शन रैंप अप होगी और हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से आप मैन्युफैक्चर जो है उसको भी इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि वो उस चीज को प्रोड्यूस करे. फाइन, इसी में लिखिए इट इज एप्लीकेबल टू 22 फर्टिलाइजर्स other than यूरिया. यूरिया की तो अलग ही पॉलिसी चलती है. इट इज एप्लीकेबल टू 22 फर्टिलाइजर्स अदर देन यूरिया. हाँ जी, डन. चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट यू हैव? No, ma'am. चलिए, नेक्स्ट वी मूव टू समथिंग कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल क्रेडिट. अब जो हम चीजें कर रहे हैं ना, ये बेसिकली सब कुछ इनपुट के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. सब्सिडी की आप इनपुट्स पे इनपुट की तरफ से देख रहे थे. ठीक है, फिर हमने ये जो भी किया अपना पीडीएस वाला, ये जो प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी वाले, उसका ऑफशूट था. अब हम बात करते हैं क्रेडिट की, बिकॉज क्रेडिट इज आल्सो नीडेड टू दी फार्मर्स. तो अगर फार्मर को लोन चाहिए तो किस तरह से अवेलेबल होगा. ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी with how much percentage of population dependent on it? 49, 59, 49 कौन कह रहा है? Read somewhere? Go and check it. You will check as per economic survey 2019 or 2020. Fine. Which sector contributed how much percentage to the Indian economy and what was the percentage proportion of population dependent on it? तीनों sectors का check करके आइएगा. 2-4% ऊपर नीचे हो जाता है बताने में, but you should be near to it. Like 49 and 59 and 60 are far away. 10% of 123 crore population. बहुत फर्क हो गया ना. चलिए, now we come to something called as agricultural credit. लोन चाहिए फार्मर को, कैसे मिलेगा? What is the structure that is available? बैंक कहता है कि एक बैंक की तो वैसे उनको प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बहुत कम समझ में आती है. फिर बैंक कहता है कोलेट्रल दो. कोलेट्रल वो उसी चीज, थोड़ी सी जमीन है उसको कोलेट्रल दे दे, उसकी फसल नहीं हो सही. ठीक है, फिर से वो कोलेट्रल बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, फिर सुसाइड फार्मर्स. ठीक है, तो ये बेसिकली देखा गया हमारी कंट्री में कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लेके कि मोस्टली अभी भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम इकोनॉमिक इनकी पेनिट्रेशन करवा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करवा रहे हैं. तो ये अभी पीछे जैम ट्रिनिटी आई थी, जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी बोलते थे इसको. जनधन अकाउंट, अपना खाता खोलो सारे, 0 वाला 0 रुपीज वाला अकाउंट, आधार बनाओ. ठीक है, नहीं, एंड उसको मोबाइल के साथ लिंक करो. ठीक है, दिस वाज दिस जैम ट्रिनिटी. जनधन खाता खुलवाओ, आधार और मोबाइल से उसको लिंक करवाओ. ये किस लिए था? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था. अब आपको लोन देना है तो आपकी बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे, आपके अकाउंट ही नहीं थे, फार्मर्स के अकाउंट्स ही नहीं थे. तो फर्स्ट स्टेप वाज कि ये चीज इंश्योर की गई. अगर हम हिस्टोरिकली देखें, अभी भी देखें, डिस्पाइट ऑफ दीस रीजंस जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो अभी भी ज्यादा है.
अनऑर्गेनाइज्ड लोन्स किनके थ्रू होते हैं? मनी लेंडर्स या जो आरटीए होते हैं उनके थ्रू होते हैं। कल भी एक बात बोली थी कि वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर देम इज कि उनकी इजी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, वो हिस्टोरिकली उनकी फैमिली के लीनिएजेस के साथ चलते आ रहे हैं, वो बंदे उन्हीं के बीच के, उन्हीं के गांव के हैं, उन्हीं के एरिया के हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है। ओवर द नाइट भी आपको लोन की अमाउंट जो है वो, मतलब आपको जो मनी चाहिए वो आपको मिल सकती है। पुराना नहीं क्लियर हुआ, अगला फिर से ज्यादा पैसे दे देगा। पहले 50,000 लिया हुआ है पिछले सीजन में, आप नहीं रीपे कर पाए, आपको फिर से चाहिए, वो फिर से दे देगा, ठीक है। कुछ शो नहीं करना पड़ता कि मैंने इसको एग्रीकल्चर में यूज किया है। हो सकता है आप उसको पैसे लेके अपने बच्चों की शादी में इन्वॉल्व कर रहे हो, ये मेन फैक्टर ये है एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड फार्म सोसाइटीज का। लेविश वेडिंग्स, the rerouting or the diversion of the agricultural loan amount for the other purposes in Punjab particularly and Haryana also, ठीक है। So the reason is कि हमारा जो unorganized sector है वो अभी भी इसीलिए चल रहा है, और जो organized sector है उसमें क्या क्या हमारी सरकार प्रोवाइड करती है, ये हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। तो you will study this topic in two perspective. What are the different measures available through the organized sector, and why is it that still unorganized sector is having a upper hand over it, and what can be done so that most of the farmers are covered under the organized sector. पहली चीज जो अभी रिसेंटली बात हो रही थी, that was priority sector lending. जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ये जितने भी बैंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, प्राइवेट भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक जिनको आरबीआई के द्वारा, आरबीआई एक्ट के अंदर जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। इनको एक टारगेट दिया गया है कि आप जो है अपने जितना लोन दोगे उसमें से 18% जो है आपने किसको देना है? प्राइवेट, इनको देने हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब है? वो वाले सेक्टर्स जो कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जिनको आपने लोन देने से मना नहीं करोगे। अब होगा क्या, मान लो बैंक के पास 100 करोड़ है कि मैं इतना लोन में डाइवर्स करूंगा, सारा तो बैंक जितना आया सब थोड़ी लोन में देगा, उसने बोला मेरा इतना कैपिटल है, मैं 100 करोड़ लोन में दूंगा। 100 करोड़ में से अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी बैंक के पास जाते हैं, उनके तो कर्जे करोड़ों में ही होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। अगर वो ज्यादा 90 करोड़ तो वैसे ही सबको, और बिजनेसमैन में क्या आपको इंटरेस्ट रेट भी आप पूरा चार्ज करोगे उनसे, तो द बैंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्बर्स लोन्स टू दीस पीपल, एंड thus the sectors like agriculture, they will be left, they will not be getting the loan, ठीक है। और even if they will be getting, then the situation would be कि maybe उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई हो, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो है गवर्नमेंट ने बोला कि एक मैंडेटरी रूलिंग है कि हर बैंक को 18% जो है वो किसमें आएगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। जितना आपने लोन देना है उसका कुछ परसेंटेज आपने प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है, ठीक है। अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स में ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है टाइम टू टाइम, और इसमें सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर, और इस 18% में भी आप कह लो कि 10% जो है वो किसको जाएगा? एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। और इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं? जैसे स्टार्टअप आ गया, एंटरप्रेन्योर वाले आ गए, एमएसएमई आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले आ गए, ठीक है, देन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज वाले आ गए, फाइन। फिर एक कुछ होते हैं सनराइज सेक्टर्स। व्हाट आर सनराइज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? किसी को कोई आइडिया हो? ऑनलाइन एनी आइडिया? सनराइज सेक्टर्स, सनराइज सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स व्हिच आर न्यू, अभी बहुत इन्फेंसी में है, जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, बट दे हैव द पोटेंशियल दैट दे कैन ग्रो टू एनॉर्मस अमाउंट्स इन द नियर फ्यूचर। फॉर एग्जांपल एक ऑफ, मैं आपको एक थोड़ा सा सब सेक्टर बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है अभी इन्फेंसी में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कम है, लेकिन 20 और 15 इयर्स डाउन द लाइन दैट कैन बी वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। सो सच सेक्टर्स आर कॉल्ड एज द सनराइज सेक्टर्स, फाइन। तो कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, ये बैंकिंग के टॉपिक में कवर होगा कि पीसी ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, बट अभी हम अपने खुद को एग्रीकल्चर तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फाइन। तो एक तो जी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर आता है। फिर क्या होता है आपके पास अलग अलग स्कीम में, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बोलते थे,
किसान क्रेडिट कार्ड, किसान का कार्ड बना दिया हमने, उसको बोला इसके थ्रू तुम हमसे लोन ले सकते हो, ठीक है, उस पे भी तुम्हें क्या मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, ठीक है। मेनली आई थिंक 1 लाख या कुछ इतनी अमाउंट इसकी फिक्स की गई थी कि तुम इतना जो है हमसे ले सकते हो। फिर इसी से रिलेटेड एक आई थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब अगेन आपको लोन किस में मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा देन अदरवाइज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द अदर सेक्टर्स और वैसे, ठीक है। समझ आ गया इंटरेस्ट सबवेंशन। अब इसको लिखेंगे कि इसकी कितना परसेंटेज है, क्या है, अभी सिर्फ समझ लो कि है कौन कौन से। फिर आता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वैसे एक अम्ब्रेला स्कीम है, सिर्फ फार्मर नहीं आते यहाँ पे, बट फार्मर भी आ सकते हैं इसलिए यहाँ पे इंक्लूड हो गया। क्या होता है, लाइक माइंडेड पीपल वॉलंटरली इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को और अपने इनपुट्स को पुल डाउन करते हैं और उससे फिर रन करेंगे कोई चीज, दैट इज थिंग। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या है कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड है या कोई बना हुआ है, तो उस पूरे ग्रुप के नाम पे लोन अवेलेबल होगा, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। और इसमें क्या होगा, जो लाइबिलिटी रहती है लोन पे करने की, वो किसी भी एक बंदे पे नहीं रहती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप बेटर पोजीशन में होते हो कि आप लोन अवेल भी कर पाते हो, आपको अवेल करने में भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको वापस करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इंटरेस्ट सबवेंशन में अभी लिखवाती हूँ उसको कि कितना, इसमें सिर्फ इतनी चीज है कि आपको कम इंटरेस्ट कम होता है आपका एज कम्पेयर टू दी अदर। जैसे फॉर एग्जांपल किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है कि आप इतना ही लोन आपको मिलेगा और ये आपका कार्ड जो है वो अवेलेबल है, उस पर 1 लाख रुपए आप ले सकते हो, कह सकते हो। इंटरेस्ट सबवेंशन पे ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर है। So these are some of the measures that government has introduced for providing the agricultural credit. अब जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। अप टू 12 मंथ के जो लोन्स मिलते हैं उनको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, 12 मंथ से 5 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए जो लोन मिलते हैं उनको बोलेंगे मीडियम टर्म लोन्स, एंड जो अबव 5 इयर्स इनका टर्म है, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट फिक्स करानी है ना, तो अबव 5 इयर्स कौन से हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। ये 3 तरह के लोन्स हैं। जो तो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं 12 मंथ वाले, ये पर्टिकुलरली आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए ही होते हैं, सीड के लिए हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आगे अपने वो उसकी स्टार्ट वीट की सोइंग स्टार्ट करनी है, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आप लोन अवेल करोगे, जब अप्रैल में जाके हार्वेस्टिंग हो जाएगी आपके पास पैसा आ जाएगा, आप वापस कर दोगे, ठीक है, आइडियली फाइन। तो जो 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम वाले 12 to 5 इयर्स, इसमें क्या है आपकी वर्किंग कैपिटल आएगी, लेकिन कैसे, मान लो आपने ट्रैक्टर लेना है, कंबाइन लेनी है, थ्रेशर लेना है, ठीक है, तो वो तो 1 लाखों में आएगा, ठीक है, तो वो आप 12 महीने में तो नहीं पे कर पाओगे, तो वो हो गए मीडियम वाले। और लॉन्ग टर्म लोन्स जमीन खरीदने लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी देयर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लोन्स दैट आर अवेलेबल। ओके, अब हमने स्कीम्स भी देख ली, हमने लोन्स भी देख लिए कैसे होते हैं। एक चीज यहाँ पे रह गई कि बैंक्स किस तरह के होते हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। हमने कमर्शियल तो कर लिए, फिर हमने किए थे रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया ही इसलिए गया था कि ग्रास रूट पेनिट्रेशन ऑफ द फाइनेंसेस हो सके, जो बैंकिंग सेक्टर है वो ग्रास रूट तक जा सके, जो लोग गांव में बैठे हैं वहां तक जो है उनको बैंक की सुविधाएं मिल सके, ठीक है। देन आपने बैंक सुना होगा नाबार्ड, ये बैंक जो है ये स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि ये इन रीजनल रूरल बैंक्स को, ठीक है, या बाकी जो बैंक्स होंगे उनको एग्रीकल्चर के लिए लोन्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब पैसा देगा कि तुम इस पैसे को आगे एग्रीकल्चर के लिए लोन्स में यूज करोगे। तो नाबार्ड से आप डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते, कोई भी जो कंज्यूमर है वो नाबार्ड से डायरेक्ट लोन नहीं लेगा। नाबार्ड जो है वो आरआरबीज को या बाकी बैंक्स को पैसा देगा कि तुम ये जो पैसा है कि तुमने मैंडेटरीली एग्रीकल्चर के लिए लोन देने में यूज करना, ठीक है।
दिस इज अबाउट नबार्ड। यहाँ पे मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये है तो वही एग्रीकल्चर एंड सबको ये पता है, तो वी थिंक कि हम नबार्ड से भी लोन ले सकते हैं। हम नहीं जाएंगे। नबार्ड इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग एजेंसी है बेसिकली, जो कि सब बैंक से सब जगह से पैसा इकट्ठा करके उसको रूट करता है एग्रीकल्चर की तरफ। क्लियर हो गया? एग्री क्रेडिट, एग्रीकल्चर की करते हैं बहुत करते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज ओनली। ठीक है जी, कोई डाउट ऑनलाइन पीपल? No, ma'am. No, ma'am. राइट डाउन नो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਨਸਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। Put up the heading agricultural credit. For remunerative farming, credit is needed. For remunerative farming, credit is needed. ये 12 months नो ना 15 months का 15 months है। मैंने कॉलनिया remunerative credit is needed. Agricultural loans can be divided into 3 categories. Agricultural loans can be divided into 3 categories. Short term, medium term and long term. Short term, long term and medium term. और ये लिख लो कि उनका कितना टाइम पीरियड है। 15 months short term, 15 months to 5 years medium term, and 5 years above is your long term loans. शॉर्ट टर्म के आगे अगर लिखना है खुद की लैंग्वेज में लिख लो, वर्किंग कैपिटल फॉर फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा वास्ते लोन है शॉर्ट टर्म वाला, और मीडियम टर्म वाला मशीनरी एग्रीकल्चरल मशीनरी वगैरह लिए यूज हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म इज फॉर द लैंड, बाइंग अप ऑफ द लैंड एक्सेट्रा। Put up the heading various government initiatives to promote institutional credit in agriculture. Various government initiatives to promote institutional credit in agriculture. Number 1 is NABARD. Number 1 is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development, established in 1982. Established in 1982. It is an apex body for providing agricultural credit. It is an apex body for providing agricultural credit. Next point highlight करके लिखना या star mark करके लिखो. It is a refinancing agency, और underline करना है इस word को, refinancing agency. It is a refinancing agency, that is, it provides indirect loans through, that is, it provides indirect loans through commercial banks, cooperative banks and RRBs. वही है कि डायरेक्ट नहीं देगा। It maintains RIDF. It maintains RIDF, that is
Rural Infrastructure and Development Fund. It maintains RIDF, that is Rural Infrastructure and Development Fund. Clear हो गया? Second लिखो जी. Interest Subvention Scheme. Interest Subvention Scheme. Farmer can avail short-term crop loans up to rupees 3 lakh, payable within 1 year, at only 4% per annum. At only 4% per annum, मतलब इंटरेस्ट रेट है 4% per annum. बेसिकली क्या है, 7% पे डिस्पर्स होते हैं लोन, तो एक थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ पे 4% पे है, तो उसको 3% के इंटरेस्ट की क्या होगी, सबवेंशन होगी. दैट इज योर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एट कंसेशनल रेट ऑफ 7% for storage in warehouses. 7% for storage in warehouses. For up to 6 months. Warehouses. For up to 6 months post harvest. For up to 6 months post harvest. For avoiding distress sale. For avoiding distress sale. ये बेसिकली क्या है कि जो वेयर हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनको भी ये लोन दे सकते हैं कि तुम अपने वेयर हाउसेस को मेंटेन करने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, यू कैन टेक इट so that you can keep the grains in a good condition, so that distress sale is not carried out by the farmer. Clear? Third लिखो, this was interest subvention. Next is किसान credit card. वैसे किसान क्रेडिट कार्ड ना कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं, we don't consider it successful. Otherwise, if it would have been successful, it would have been, there would not have been need felt for the other initiatives being taken. और एक बहुत पुराना मेजर है, 1998 इंट्रोड्यूस हुआ किसान क्रेडिट कार्ड. तो अगर आप आंसर्स में लिख रहे हो तो किसान क्रेडिट कार्ड को थोड़ा नीचे लिखना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको थोड़ा ऊपर लिखना. ठीक है, चलो. किसान क्रेडिट कार्ड, short term credit scheme introduced in short term credit scheme introduced in 1998. All individual or joint borrowers who are owner cultivators. जमीन दो भाइयों के नाम है ना, joint. Who are owner cultivators, comma tenant farmers, SHGs, self-help groups are eligible for this scheme. But again, mainly 1 lakh तक का लोन तुसी अवेल कर सकते हो उसके बेस पे. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, you will have to provide them with the collateral. ठीक है, तो ultimately if you would have to provide the collateral only, you will go to the other banks. Why would you avail it through the किसान credit card? तो people at that time, जो सुनने में आया, हम तो सोच बूझ थी नहीं, जो सुनने में आया, people at that time they use these cards और सबने 1 lakh रुपीस ले लिए
पे किए नहीं किए कुछ नहीं पता, तो इट वाज अ मेजर फेलियर। फाइन, तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑब्जेक्टिव्स लिख लो, बट इससे क्या सी किसान क्रेडिट कार्ड दे 2-4 बस ऑब्जेक्टिव्स। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट, providing adequate and timely credit, comma, meet short term requirements, meet short term requirements, and post harvest expenses, post harvest expenses। हो गया जी। नेक्स्ट लिखो हुन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। First point, started by NABARD in 1992, started by NABARD in 1992 to link the unorganized sector with the formal banking sector, to link the unorganized sector with the formal banking sector। Bank provides, next point, bank provides loans to the self-help groups, SHGs लिख लेना बस, self-help groups, against group guarantee, against group guarantee, and the quantum of loans could be, कितना लोन मिलेगा, the quantum of loans could be several times the deposits, could be several times the deposits placed by, several times the deposits placed by the self-help group with the bank। ठीक है जी। So this was the another part। Now as I told you, despite of all these reasons, okay, initiative हो गए, measures हो गए, products हो गया। Now what are the issues with the agricultural credit? Fine, issues वही है कि एक तो unorganized, दूसरा किसान मतलब like you can say थोड़ी friendly norms नहीं है, KYC norms होते हैं, know your customer norms, तो farmer sometimes he is अपने ना formalities ਦੇ ਵਿੱਚ paper work ਦੇ ਵਿੱਚ उलझ ਜਾਂਦਾ बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर उसको collateral का बड़ा चक्कर पा जाता है, ठीक है। Then all these things are there, so just 4-5 points लगा के लिख लो issues with agricultural credit। In any case specific question mains आ जाता है कि institutional agricultural credit का की हाल है। Issues related to agricultural credit, number 1, according to National All India Rural Financial, National All India Rural Financial Inclusion Survey 2015, Rural Financial Inclusion Survey 2015, the share of non-institutional credit, the share of non-institutional credit persists at 28%. Out of all the loans, 28% is still non-institutional. Next point, poor deployment of agricultural credit to allied sectors. Poor deployment of agricultural credit to allied sectors. Allied sectors, animal husbandry,
ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। Regional disparity in agricultural credit. Eastern and northeastern states, eastern and northeastern states are getting very low agri credit, very low agri credit as percentage of their agri GDP, as percentage of their agri GDP। मतलब in a states ਦੇ ਵਿੱਚ the percentage that is contributed by the agriculture to GDP of that state is more as compared to the loans that are given to the agriculture sector। ठीक है, आइडियली ਕੀ होना चाहिए, जो ये सेक्टर सब ਤੋਂ ज्यादा ਤੁਹਾਡੀ GDP ਨੂੰ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे ज्यादा लोन्स देने चाहिए है। ठीक है, तो इस तो यही चीज सामने आ रही है that you are not incentivizing the sector, or again non institutional penetration is more। Fine, next, skewed agency share। skewed agency share, skewed इसका ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ, स्टैटिस्टिक्स ਚ पढ़ते किसी एक तरफ ज्यादा टिल्ट होया ਹੁੰਦਾ है। skewed agency share, इस लिखो the share of cooperative institutions, the share of cooperative institutions and RRBs is skewed in providing the credit। that means what, कि ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ PSL ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ RRBs ਵਗੈਰਾ, ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ नहीं हैगी। So this is one of the issues। बता दो। Next point, diversion of agricultural loans for non-agricultural purposes। Diversion of agricultural loans for non-agricultural purposes। ठीक है, then now what should be done, प्रॉब्लम का पता लग गई, what should be done, that एक तरफ क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल करवा दिया लाइफ सेक्टर्स वगैरह में भी, एंड दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कट किया जाए। मेन तो वही है फाइनेंशियल इंक्लूजन, अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड जो फॉर्मेलिटीज है, रेड टेपिज्म है, उसको भी किया जाए, कट तो कट किया जाए। ठीक है, लिख लो 3-4 पॉइंट, लास्ट है, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी। You will be happy when your speed will be fine। Number 1, establish a federal institution in agriculture। लिख दो way forward, way forward। Establish a federal institution in agriculture on the lines of GST Council, on the lines of GST Council, to enable consultation with the states, to enable consultation with the states during formulation and implementation of the reforms, formulation और implementation of the reforms। क्योंकि अपा की बोल रहे हैं रीजनल डिस्पैरिटी है,
तो सारी स्टेट वाले बैठन आपस च कहन भी हुण आपां क्रेडिट किस बेसिस ते देना है, आपां किस तरह दे रिफॉर्म्स करिए कि अपना जो है एग्री क्रेडिट एक प्रॉपर वे दे नाल चल सके। ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू एग्रीकल्चर च भी पंजाब हरियाणा नॉर्थ रीजन इज डिफरेंट, ईस्टर्न इज डिफरेंट एंड सदर्न इज डिफरेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, increasing credit flow to allied activities, credit flow to allied activities by covering them under PSL guidelines। allied sector ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ priority sector declare ਕਰੋ। ठीक है, under PSL guidelines। Next, utilizing farmer producer organizations, utilizing farmer producer organizations, it means what, ਜਿਹੜੇ farmer ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ organization ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ हैं, उस organization ਨੂੰ recognize ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ as an organization loan provide ਕਰਨਾ start ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ self help groups ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ farmer ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ, farmer producer organizations should be given for that। Next, database for Indian agriculture sector, database for Indian agricultural sector। ठीक है, so these are certain points that what you can do to improve them। फाइन, बाकी ये तो रहेगा कि कंप्लायंट पॉलिसीज ऑफ द बैंक वो तो आप लिखी देंगे नॉर्मल पॉइंट्स कि बैंक को अपनी रीच अवेयरनेस करनी चाहिए है। ठीक है, दे आर सिंपल पॉइंट्स बट यू शुड गिव द ऑथेंटिक पॉइंट्स। फाइन, एनी डाउट ऑनलाइन, एनी डाउट यू पीपल हैव? नो मैम। किधर सॉल्यूशन? हाँ 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 हाँ, यस यस, गुड। दसो स्ट्रगल बर्निंग का सॉल्यूशन। बायो ओके, और मतलब बायो मिथिलेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਆ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਲਈ, ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਐਜ਼ ਅ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह तो वो डाइवर्ट नहीं कर रहे स्टबल टुवर्ड्स टाइम लगता है ना, इतना टाइम चाहिए होता है उसको प्रॉपर कंपोज होने के लिए, इतना टाइम वो वेट नहीं करता फार्मर की वो कि उसको अगर एक फसल उसको लगाने में उसका इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट। फार्म लिंकेजेस, फार्म लिंकेज टू द फैसिलिटीज जिससे उसका डाइवर्जन होना है। ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਮਿਥੇਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੋਇਲਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਮੈਂਟਡ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ, ਬਲੌਕਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟਸ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਵੀ क्रश या उसे किसी भी तरह प्रोसेस करके यूज कर लो। वन ऑफ द थिंग इज दैट कि कंस्ट्रक्शन जिसका यूज लेके आओ वो भी कंस्ट्रक्शन च हैवीली रिक्वायर्ड है। ठीक है, जेडे अपने बायोमिथेनेशन वगैरह वाले प्लांट्स है ये भी है, बट द एंटायर थिंग इज यू हैव टू प्रोवाइड द खर्चा कौन देगा ना, फार्मर ਨੂੰ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਬਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਲਓ। ठीक है, और उसी चक्कर से इन्होंने साइकिल लाते हैं, चलो पता ही सीगा, आपको भी पता है कि क्या कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव भी देता भी साइकिल लगा दो 10 रुपए घंटा कितने जो भी है। ठीक है, सो द एंटायर थिंग इज कि यू हैव टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव, नंबर 1, नंबर 2 लिंकेज क्रिएट करो, एक सिस्टम एवे दा डेवलप करो और कस्टम हायरिंग सेंटर्स दे थ्रू ही डेवलप कराओ कि तुसी फार्मर दी फील्ड तो कलेक्ट कर रहे हो स्टबल, ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਿਥੇਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ।
ठीक है, ये चीज की है जो हो सकती है, और इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं दिख रहा और कुछ नहीं। और बाकी जिਵੇਂ कहती है ना हैप्पी सीडर है जी, ये है वो फिर भी छड़ देगा कुछ ना कुछ रेजिड्यू। कितने को मशीन्स अवेलेबल करा दोगे, कितना कुछ कर लोगे, फाइन। एक वो तरीका से का मतलब इट इज नॉट इमीडिएट सॉल्यूशन बट द परमानेंट सॉल्यूशन। कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न काफी टाइम to सेम फॉलो कर। हाँ वो तो है ही, वो तो जब पूरा आप एग्रीकल्चर। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर देना तो एंटायर चीज ही चेंज हो जाएगी। बट फार्मर्स का बेनिफिट होएगा बट वो चीज बहुत डिफिकल्ट है। एंड दूसरी चीज छोड़ो, ਤੁਸੀਂ क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करोगे, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਆਲ ਦ ਵੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਆਫ ਯਰ ਕੰਟਰੀ। ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਸਾਈਕਲ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਸ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕमिंग ਮੌਨਸੂਨ ਐਂਡ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੌਨਸੂਨ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती। ਉੱਥੇ ਤਾਂ pollution ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਬਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਜ਼। 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2016 ਜਾ ਕੇ ਸਟਬਲ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਮੇਜਰ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਟਬਲ। ਇਵਨ ਅਗਰ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਚ ਵੀ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਗਰਾਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਨਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ठीक है, तो that is why this issue has become because थोड़ी सी capital of your country is involved in it। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਪੈਡੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਸ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਟੱਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਂਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ठीक है, so the one thing solution is alternative to the stubble use, and second thing is long term जो cropping pattern वाला उसके वो agricultural reforms से भी देखते हैं। ठीक है, एक अपना टॉपिक है पूरा cropping pattern वाला, वो मैं इसलिए पीछे वास्ते रखते हैं बिकॉज़ मुझे ये पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराना। वो ज्योग्राफी ना ओवरलैप होता है। ज्योग्राफी होगी तो पढ़ी हुई ज्योग्राफी किसी ने पहले तो 2-4 ही है ना, बाकी ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਮਿੰਗ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫॉर 3 ਇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ यूपीएससी प्रीवियस को बहुत देख लो की करते हैं। कल की छुट्टी है अपने लेक्चर में। ठीक है, इन केस बाय एनी चांस कोई चेंज होया तो मैसेज आई ਜਾਂਦਾ है ग्रुप पे। ठीक है, सारे हैगे हैं ना एडिट। ठीक है, सो द थिंग इज कि ता प्रीवियस ईयर मेंस ਦੇ क्वेश्चन देख के आने हैं पिछले 5 ਸਾਲਾਂ में। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ एग्रीकल्चर ਤੋਂ रिलेटेड फाइन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ क्वेश्चन बोले हैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਲਓ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। और एक ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਟਨ ਆਨਸਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੈਟ ਥॉट process। So let me see to what extent, because writing an answer from societal perspective and governance perspective is completely different. Writing it when you are for the economic perspective or for quality perspective, they are different. Clear?